خدا ان کے جلالی اور خوبصورت نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام۔ آپ سب خوش ہیں؟ ہم مکمل طور پر خوش ہیں؟ سب بولے ہاللیلویا۔ یقیناً آج ہم خداوند کے گھر میں ہیں اور خداوند کے گھر میں آنا خوشی کی بات ہے، نہ کہ افسردگی کی بات ہے۔ داؤد نبی کہتا ہے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ آپ کو جب دعوت دی جاتی ہے، آپ کو جب کہا جاتا ہے کہ جی آئیں خداوند کے گھر میں، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے گھر میں آنے سے ہم اگر خالی ہاتھ آئے ہیں تو کبھی بھی ہم خالی ہاتھ نہیں جا سکتے۔ اس کے گھر سے ہم برکت ہی لے کر جائیں گے، اس کے گھر سے ہم برکت ریسیو کر کے جائیں گے۔ ہم کبھی بھی خالی نہیں جائیں گے جب ہم اس کے گھر میں خوشی سے آئیں گے، مجبوری سے نہیں بلکہ خوشی سے۔ اور خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ یہ ہدیے کی بات نہیں میں کرنے لگا۔ جب آپ خوشی سے اپنے بدن کو پیش کرتے ہیں، خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، خوشی سے اپنے ذہن دماغ سوچ کو پیش کرتے ہیں، تو خدا اس کے بدلے میں آپ کو کیا دیتا ہے؟ برکت دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج جو حوالہ ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، یوحنا رسول کی معرفت، یہ خداوند یسوع المسیح کا انجیلی بیان ہے۔ یہ انجیلی بیان بہت ہی خاص ہے۔ دوسری تمام انجیلوں سے یوحنا کی انجیل بہت ڈیفرنٹ ہے۔ یوحنا کی انجیل کو عالمگیر انجیل کا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ جو ایونجلزم کرتے ہیں، جو غیر اقوام میں منادی کرتے ہیں، وہ کسی اور انجیل کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے، وہ یوحنا کی انجیل کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ یوحنا کی انجیل کو تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں خاص موضوع یہ بات رکھی گئی ہے کہ خداوند یسوع المسیح خدا کا بیٹا ہے۔ میرے عزیزو، آج جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ یوحنا رسول نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور یہ بات اس نے ہم پر عیاں کر دی ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے ذریعہ سے فضل آیا۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے مسیح کا فضل اور شریعت۔ کیا ہے ہمارا مضمون؟ مسیح کا فضل اور شریعت۔ میرے عزیزو، یوحنا رسول جو تھا وہ خداوند یسوع المسیح کا رشتہ دار بھی تھا، اور خداوند یسوع المسیح کا بڑا پیارا اور بہت ہی خداوند یسوع المسیح سے پیار کرنے والے اور تمام شاگردوں میں کم عمر والا یہ نبی تھا۔ یہ واحد نبی ہے جو طبعی موت مرا۔ طبعی موت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خود بخود جس سے موت آئی، شہید نہیں کیا گیا اسے۔ میرے عزیزو، یوحنا رسول نے یوحنا کی انجیل، 3 خطوط اور یوحنا عارف کا مکاشفہ لکھا۔ وہ تمام باتیں جو آسمان پر روح پذیر ہوئی، وہ تمام نقشہ، وہ تمام بید جو کوئی نہیں جانتا تھا، صرف یوحنا جانتا تھا، اور یوحنا نے خدا کی مرضی سے اور خداوند یسوع المسیح نے یوحنا کو یہ باتیں تمام لکھوا دی۔ آنے والے وقتوں کے بارے میں، آنے والے زمانوں کے بارے میں وہ تمام باتیں لکھوا دی۔ میرے عزیزو، آج جو حوالہ ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس کی ہم
آج 17ویں آیت کو دیکھتے ہیں. لکھا ہے اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت. شریعت کیا ہے؟ شریعت قانون ہے. اگر ہم شریعت کی تعریف کریں، شریعت پاکیزگی کا اظہار ہے جس کی بنا پر خدا انسان سے مطالبہ کرتا ہے. شریعت ایک ناپ ہے، پیمانہ ہے، ساحول ہے اور خدا کی مرضی کا اظہار ہے. شریعت سے پہلے بھی خدا کے ساتھ انسان چلتا تھا. شریعت سے پہلے بھی خدا کے ساتھ وفاداریاں کرتا تھا. شریعت سے پہلے بھی خدا کے ساتھ انسان کا تعلق تھا. پر شریعت کیوں دی گئی؟ کیا وہ تعلق اچھا نہیں تھا؟ بہتر تھا. آپ ہنوک کے بارے میں جانتے ہیں. لکھا ہے کہ خدا کے ساتھ ساتھ وہ چلتا تھا اور خدا نے اسے کیا کیا؟ اٹھا لیا. نوح کے بارے میں جانتے ہیں. لکھا ہے کہ اس سرزمین پر ایک نوئی راسباز انسان تھا. وہ کون سی شریعت پر چل رہا تھا؟ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں 7 ادوار ہیں اور جس دور کی میں بات کر رہا ہوں وہ ضمیر کا زمانہ ہے. آپ کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے. آپ کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے اور آپ کا ضمیر اس بات کی آگاہی دیتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے اور برا ہے. اگر ہنوح خدا کے ساتھ چلتا رہا تو وہ اپنے ضمیر کی آواز پر چلتا رہا. اگر نوح خدا کے ساتھ چلتا رہا تو وہ خدا کے ساتھ اپنے ضمیر کے ساتھ جب اس نے خدا کی باتوں کو، اچھی باتوں کو سننا اور سمجھنا شروع کیا اور خدا نے مزید اس کے ساتھ بات کرنا شروع کی اور اس کی رہنمائی ہوتی رہی. پر میرے عزیزو، میں جو بات کرنے والا ہوں کہ شریعت کو کیوں دی گئی؟ شریعت کے دینے کا مقصد کیا تھا؟ شریعت کیوں دی گئی موسیٰ کی معرفت؟ کیوں ایک قانون دیا گیا؟ کیوں ایک آئین دیا گیا؟ کیوں ایک پیمانہ دیا گیا؟ کہ اس کے مطابق تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. اس سے نہ بڑھنا ہے نہ گھٹنا ہے، بلکہ اس کے مطابق چلنا ہے. میرے عزیزو، خدا نے کسی قوم کو یا کسی قبیلے کو نہیں چنا تھا. جب خدا نے قانون اور آئین دیے، جب خدا نے ایک دستور بنایا، جب خدا نے ایک دستور کو قائم کیا، اس وقت ایک بڑی قوم تھی. خدا کے پاس ایک بڑی قوم تھی اور خدا نے بنی اسرائیل کو چنا. اور صرف ایک لوگ نہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ تھے. ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ تھے اور ان لوگوں کو ایک آئین کے تحت چلنا تھا. اگر ایک کا ضمیر یہ کہتا تو دوسرا فلاں کہتا. میرے عزیزو، خدا نے انہیں ایک دستور دے دیا. خدا نے انہیں ایک آئین دے دیا کہ اب تم نے ایک بڑی قوم ہو اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، میں نے تمہیں الگ کر لیا ہے، میں نے تمہیں اپنا بیٹا بنا لیا ہے تاکہ دنیا جانے کہ یہ خدا کی قوم ہے. اس لیے میں تمہیں ایک آئین اور دستور بھی دے دیتا ہوں. دوسری بات، بنی اسرائیل کا بادشاہ کون تھا؟ ساؤل پہلا بادشاہ. ساؤل سے پہلے ان کا بادشاہ خدا تھا. ہاللیلویا. جب خود لوگوں نے ساؤل کی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ایک بادشاہ ملے، ہمیں ایک بادشاہ چاہیے جو ہمارے آگے آگے چلے، تو ساموئیل بڑا پریشان ہوا. وہ کہنے لگا تم کیسے لوگ ہو؟ تو خدا نے کیا کہا؟
खुदा ने कहा सैमुअल परेशान ना हो, इन्होंने मुझे रद्द किया है, ये नहीं चाहते कि मैं इनका बादशाह हूं। मेरे अजीजों, उससे पहले खुदा उनका बादशाह था, और जो बादशाह होता है वो अपनी राया के लिए एक आयन और दस्तूर बनाता है। जो बादशाह होता है वो एक आयन और दस्तूर बनाता है जिसके आयन के मुताबिक मेरी कौम और मेरे लोग चले। इसलिए खुदा ने मूसा की मार्फत शरीयत को दिया। मेरे अजीजों, ये शरीयत फौजदारी की शरीयत थी, इंसानी हमदर्दी की शरीयत थी, मजहबी शरीयत थी, रसूमाती शरीयत थी, और भी बहुत सारी शरीयतें इसमें मौजूद थी। पर मेरे अजीजों, ये शरीयत कामिल शरीयत थी। ये शरीयत ये नहीं थी कि इसमें किसी चीज़ की कमी थी, बल्कि ये कामिल शरीयत थी, जिसमें दाऊद नबी 19 ज़बूर के 7 आयत को जब आप पढ़ें तो वहाँ पर दाऊद नबी क्या कहता है? खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। खुदावंद की शरीयत क्या है? कामिल है। खुदावंद की शरीयत कामिल है। किसी ने भी इस शरीयत में आकर चीजों को इन्वॉल्व नहीं किया। उसके बाद बड़े बड़े नबी हुए, यशायाह बड़ी नबी हुआ, यर्मिया बड़ा नबी हुआ, दानियल बड़ा नबी हुआ, हबक्कूक बड़ा नबी हुआ, यर्मिया बड़ा नबी हुआ, मलाकी बड़ा नबी हुआ। तमाम नबियों ने इस शरीयत पर काम किया, ना कि इस शरीयत में इन्वॉल्व किया है, क्योंकि यह शरीयत क्या थी? कामिल शरीयत। यह शरीयत कैसी थी? कामिल शरीयत। पर यह शरीयत कामिल होने के बावजूद ये इंसान को कामिल ना कर सके। शरीयत कामिल होने के बावजूद भी इंसान को कामिल ना कर सकी। मेरे अजीजों, शरीयत क्या करती है? शरीयत ने सिर्फ और सिर्फ क्या काम किया? शरीयत ने गुनाह की पहचान कराई। अगर आप रोमियो का खत उसका 3 बाब और उसकी 2 आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तूने गुनाह को पहचाना। शरीयत के वसीला से तो गुनाह की क्या होती है? पहचान होती है। गुनाह की क्या होती है? पहचान होती है। शरीयत जो थी उसके वसीला से गुनाह की क्या होती थी? पहचान हुई। जब शरीयत आई उससे पहले इंसान ये नहीं जानता था कि चोरी क्या है, लालच क्या है। जैसे ही शरीयत आई तो इंसान ने इस बात को जाना कि ये तो गुनाह है। जब शरीयत आई तो इंसान इस बात को जान गया कि फलां चीज भी गुनाह है। जब शरीयत आई तो बहुत सारे गुनाहों को उजागर कर दिया गया, और जब गुनाह उजागर हो गया, जब गुनाह उभर आया, जब गुनाह वाज़िया हो गया, तो जैसे ही गुनाह वाज़िया हुआ वैसे ही इंसान गुनाह करना ज्यादा करना शुरू कर दिया। मेरे अजीजों, जब आप रोमियो का खत उसके 7वां बाब और उसकी 13वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि हुक्म के जरिया से गुनाह हद से ज्यादा क्या हो गया? मकरूह मालूम होने लगा। पहले तो इंसान ये नहीं जानता था कि गुनाह मकरूह है, पर जैसे ही शरीयत आई, शरीयत आई, हुक्म आया, मूसा की मार्फत ये पैगाम आ गया, तो वो गुनाह क्या होने लगा? मकरूह मालूम होने लगा। मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन ये तमाम बातों के बावजूद भी, इन तमाम बातों के बावजूद भी शरीयत इंसान को कामिल बना ना सकी। अबरानियों का खत 7वां बाब और उसकी 19वीं आयत को पढ़िएगा तो वहां पर आपको मिलेगा कि शरीयत, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं बनाया, शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं बनाया, क्योंकि इंसान चाहता है कामिल बनना। खुदा की डिमांड है कामिल बनना। खुदा ये चाहता था कि इंसान कामिल हो। खुदा ये चाहता था कि इंसान आदम की तरह पहले हो जाए, पर शरीयत ये काम ना कर सकी। शरीयत ये काम ना कर सकी। शरीयत इंसान को रास्तबाज ना ठहरा सकी। आप रोमियो का खत उसका 3 बाब और उसकी 2 आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि शरीयत के वसीला से इंसान रास्तबाज
ना ठहर सका। हमारे अमाल की वजह से नहीं, क्योंकि शरीयत थी अमाल, शरीयत थी कि आप अमल करें और आपको क्या मिलेगा, उसके बदले में बदला मिलेगा। पर अमल के जरिया से भी इंसान कोई भी रास्तबाज ना ठहर सका। शरीयत खुदा तक रसाई करने का वसीला ना बन सकी कि शरीयत के जरिया से इंसान खुदा तक पहुंच सके, शरीयत के वसीला से इंसान खुदा तक रसाई कर सके, शरीयत के वसीला से इंसान खुदा के साथ बात कर सके। पर शरीयत ये काम ना कर सकी। मेरे अजीजों, इन तमाम कमियों को पूरा करना था, इन तमाम कमियों को पूरा करना था, क्योंकि इंसान की ये तवक्का थी, इंसान ये चाहता था कि वो कामिल बने, पर शरीयत ऐसा ना कर सकी। इंसान ये चाहता था कि खुदा के साथ बात करे, पर शरीयत ऐसा ना कर सकी। अगर इंसान चाहता था कि वो खुदा के साथ रसाई हासिल कर सके, पर ये शरीयत ऐसा ना कर सकी। मेरे अजीजों, इन तमाम कमियों को पूरा करने के लिए, इन तमाम बातों को पूरा करने के लिए मेरा यीशु फजल लेकर इस दुनिया में आया। हालेलुया, मेरा यीशु फजल लेकर इस दुनिया में आया और उसने आकर इंसान को रास्तबाज बना दिया। मेरे अजीजों, फजल क्या है? आए हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। फजल क्या है? फजल खुदा की मेहरबानी है। खुदा की मेहरबानी है, इंसान की नेकी और खूबी की वजह से नहीं। गुनाहगार से बिला वास्ता मोहब्बत रखना का मुस्तहिक है, और वो रहम जिसके हम हकदार नहीं आए, उसे फजल कहा जाता है। मेरे अजीजों, हम आज के दौर में फजल के मुताहत है। किसके मुताहत है? फजल के मुताहत है। और फजल ने आकर क्या किया? फजल ने आकर हमारे गुनाहों को धो दिया, हमारी खुदा तक रसाई करा दी और हमारी तमाम कमजोरियों को दूर कर दिया। फजल ने आकर जो हम खुदा तक रसाई नहीं कर सकते, हम जो गुनाहगार थे, हम खुद अपने गुनाहों को कभी भी धो नहीं सकते थे और ना शरीयत हमारे गुनाहों को धो सकी, बल्कि फजल ने आकर हमारे गुनाहों को क्या किया? धो दिया। मेरे अजीजों, मैं आप तक और भी फजल के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। फजल खुदाए सलूस का मंबा है। खुदा फजल है। खुदा क्या है? फजल है। अगर इस बात को अगर हम जानना चाहते हैं तो मेरे साथ पढ़िएगा पहला पतरस और उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, अब खुदा जो हर तरह के फजल का क्या है? सरचश्मा है। खुदा क्या है? हर तरह के फजल का सरचश्मा है। खुदा फजल है। खुदा क्या है? फजल है। खुदा क्या है? फजल है। मेरी बात को समझिएगा। खुदा क्या है? फजल है। ना तो यसाया फजल दे सका, ना तो यर्मिया फजल दे सका, ना तो हबकूक फजल दे सका, ना वो तमाम अंबिया फजल की तालीम दे सके, क्योंकि वो फजल के मंबा नहीं थे। फजल वही दे सकता है जो फजल का मंबा हो। हालेलुया। फजल वही दे सकता है जिसके अंदर से फजल निकलता हो। फजल वही दे सकता है जिसके अंदर से फजल जारी हो। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जब यीशु मसीह ने इस दुनिया में कदम रखा, तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो यीशु मसीह के आने से यूहन्ना अरफ इसके बारे में क्या लिखता है? यूहन्ना अरफ लिखता है, कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम क्या हुआ? फजल और सच्चाई से मामूर होकर। किससे मामूर है? मेरे साथ रहिएगा। कलाम मुजस्सम हुआ, मामूर किससे है? फजल से। किससे मामूर है? फजल से वो मामूर है। वो रहम से मामूर है। वो मेहरबानी करने में मामूर है। वो माफ करने में मामूर है। वो तरस खाने में मामूर है। इसलिए तो खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने बावाज़ बुलंद ऐलान किया, ऐ थके मांदो बोझ के थले दबे हुए,
सब लोगों मेरे पास आओ क्योंकि मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। मेरे अजीजों, ये उसका फजल है, ये उसका फजल था कि कौम बनी इस्राइल उस सरजमीन पर कदम रखना गवारा नहीं करते थे जो गैर लोग थे, जो गैर अक़वाम के लोग थे। उनके मुल्कों में उन लोगों के साथ मिलना पसंद नहीं करते थे। मैं बात करने लगा हूं सामरी औरत की। मेरे अजीजों, मेरे यस्सु ने जो फजल से मामूर था, जो रहम करने वाला था, और उसने जमीन पर जब कदम रखा और उसने तमाम उन बातों को पूरा किया और बताया कि मैं फजल से मामूर हूं, इसलिए मैं गुनाहगारों के पास जाता हूं। हालेलुया। मैं फजल से मामूर हूं, इसलिए मैं गुनाह माफ करता हूं। तो जब यस्सु ने उस सरजमीन पर कदम रखा तो उसने सामरी औरत को खुशखबरी सुनाई, जिनसे यहूदी बात करना पसंद नहीं करते थे, जिनसे उनके बात करने की अलग बात, वो उनके शहर में से गुजरना पसंद नहीं करते थे, वो उस शहर में से जाना पसंद नहीं करते थे। पर मेरा मसीहा जो फजल से मामूर है, वो रहम करता है, वो रहम करने वाला है, और वो जमीन पर इसलिए आया ताकि तमाम गुनाहगारों पर रहम करे, वो इम्तियाज को खत्म कर दे, वो ये खत्म कर दे कि ये गुनाहगार है और ये नेक है, बल्कि इस इम्तियाज को खत्म करके उसने सबको बराबर कर दिया, क्योंकि वो फजल से मामूर है। हालेलुया। उसने फजल से मामूर होकर उसने तमाम बातों को पूरा कर दिया। मेरे अजीजों, उसकी फजल की झलक हमें नजर आती है। वो औरत जो बदकार औरत थी, जिसे यहूदी अच्छा नहीं समझते थे, जिसे यहूदी संसार करना चाहते थे, जिसे यहूदी मारना चाहते, दुनिया में जो हकीर लोग थे, खुदा ने उन्हें अपने गले से लगाकर किया, क्या कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। गुनाह माफ करने का इख्तियार खुदा के पास है। गुनाह माफ करने का इख्तियार किसके पास है? तो जब यीशु ने गुनाह माफ किए तो यीशु ने यह साबित किया, अगर खुदा फजल से मामूर है तो मैं भी फजल से क्या हूं, मामूर हूं। मैं भी गुनाह माफ करने का क्या कर रखता हूं, इख्तियार रखता हूं। मेरे असीसों, मेरे भाइयों, फजल की एक झलक हमें नजर आती है सलीब पर। फजल आपको अमाल नहीं चाहता, फजल अमाल की डिमांड नहीं करता, फजल ये नहीं चाहता कि आप एक इमाल की एक लंबी लिस्ट बनाए। फजल ये नहीं चाहता। फजल क्या चाहता है? आप जानते हैं फजल क्या चाहता है? फजल चाहता है इकरार। क्या चाहता है? इकरार चाहता है। उस डाकू ने जो सलीब पर मरने के करीब था, उसने क्या किया? अपने अमालों की लिस्ट बताया मैं चर्च जाता रहा हूं हर संडे, बताया उसने मैं हदिया रूटीन के साथ देता रहा, मैं शुक्रगुजारियां देता रहा, मैं बहुत अच्छे काम करता रहा, खुदा तू मुझे जन्नत में ले जा। नहीं, फजल ये डिमांड नहीं करता। अमाल शरीयत डिमांड करती थी, पर फजल ये डिमांड नहीं करता। फजल क्या कहता? फजल कहता तू ज़बान से इकरार कर कि यीशु मसीह खुदावंद है, मैं तुझे जन्नत में ले जाऊंगा। हालेलुया। फजल ये चाहता है। जब उस डाकू ने जो सलीब पर था सिर्फ ये कहा, ऐ खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में जाए मुझे भी याद करना, तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा तुझे अमाल की जरूरत नहीं है, तूने इकरार कर लिया, तेरे गुनाह माफ हुए, आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आज हम बहुत भी गुनाहगार हैं, अगर आज हम समझते हैं कि मेरे गुनाह नाकाबिले माफ़ी हैं, हम उस डाकू से तो कम ही हो सकते हैं, जो चोर भी था, डाकू भी था, जनाकार भी होगा, बहुत बुरा होगा। दुनिया में एक मिसाल है कि जिसे सलीब दिया गया है यीशु के साथ, को वो मामूली डाकू नहीं होगा। जिसे सलीब दिया गया यीशु के साथ, वो कोई आम आदमी नहीं होगा, बल्कि वो बहुत बड़े जुर्म में मुब्तला होगा। पर यीशु ने वहां पर माफ करके
दुनिया को ये पैगाम दिया कि दुनिया में अगर इस जैसा भी कोई गुनाहगार होगा मैं उसे भी माफ़ कर दूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये फजल है। ये क्या है? फजल है। तो यूहन्ना आरफ क्या कहता है? यूहन्ना आरफ कहता है शरीयत तो ये मूसा की मार्फत दी गई, जुर्म साबित करना मूसा की मार्फत दी गई, सजाएं मूसा की मार्फत दी गई, तमाम बातें जो खुदा तक रसाई नहीं थी वो मूसा की मार्फत दी गई, कुर्बानियां मूसा की मार्फत दी गई, तुम्हारे गुनाहों को उजागर करना मूसा की मार्फत दिया गया, पर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत दी गई। हालेलुया। रहम, माफी, तसल्ली, ये सब कुछ किसकी मार्फत दी गई? यीशु मसीह की मार्फत दी गई। मेरे अजीजों, आज अगर फजल है हम पर तो उस फजल को हकीर ना जाने, अगर फजल है आप पर तो उस फजल को आम ना जाने। एक दिन ये फजल आपसे खत्म हो जाएगा। आप इस फजल को ढूंढेंगे पर फजल नहीं मिलेगा, इस फजल की तलाश करेंगे पर फजल नहीं मिलेगा, इस फजल को चाहेंगे पर फजल नहीं मिलेगा। मेरे अजीजों, अगर आज यीशु का फजल है आप पर तो मेरे अजीजों अपने गुनाहों का इकरार करें। आज अगर आपके पास बच्चे हैं, आपके पास नौकरी है, आपके पास बहुत सारी नेमतें हैं, तो क्या आपके अमानों की वजह से? ये उसका फजल है। ये उसका क्या है? फजल है। कभी भी अपने किरदार को नुमाया ना करे खुदा के सामने, अपनी नेकियों को उजागर ना करे खुदा के सामने। मुकद्दस पौलुस रसूल बहुत ही खुदा का अजीम खादिम है। वो कहता है मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की और मेरे पास सबसे ज़्यादा मुकाशफे हैं, पर मैं ये नहीं कहता कि ये मेरी मेहनत की वजह से है, बल्कि मैं ये कहता हूँ ये उसके फजल की वजह से है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, ये फजल है। आए उसके फजल को लें, उसके सामने अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो आपको माफ़ कर देगा। आप जैसे भी गुनाहगार हैं, जिस भी गुनाहगार में, जैसे भी गुनाह में आप मुब्तला हैं, कभी ना घबराएं, कभी ना ये कहें खुदा मेरे गुनाह को माफ़ नहीं करेगा। सच्चे दिल से उसका इकरार करें, खुदा उसी वक्त कहेगा तू मेरा बेटा, तू मेरी बेटी है। क्योंकि जो कोई यीशु मसीह का इकरार करता है, जो कोई यीशु मसीह को अपना लेता है, फजल ये डिमांड करता है वो उससे अपना बेटा और बेटी बना लेता है। मेरे अजीजों, आए हमें चाहिए कि हम फजल के मुताहत हैं तो फजल को जानें, फजल में ज़िंदगी बसर करें और अपने गुनाहों का इकरार करें और उसके हुजूर अपनी ज़िंदगी को बसर करें। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे।